क्या हुआ प्रोजेक्टर का? नहीं, ये तो इसके ठीक है। Okay, so in the last class, we have seen that while we try to compile and run the program through Eclipse, all we need to do is just a button click, right? रन बटन को क्लिक करते हैं, प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन जब हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट या कंसोल से उसको कंपाइल और रन करने की कोशिश की थी, तो देयर वर टू स्टेप्स, राइट? वन वाज यूजिंग द कमांड javac, which is the Java compiler, and then we were getting a file corresponding to, say for example, my first program.java. We were getting a file, my first program.class file, right? So let me just write it here. So let me say the name of the program was my first prog.java. This file was given as an input to the command javac, right? That is Java compiler, and the output that we were getting was a corresponding similar file with the same name, my first prog, but with the extension .class, right? ठीक है, ये मिल रहा था. Then what we do, we run the Java command, but we didn't get the input to this Java command as my first program.class. We just say my first prog and that's it, right? And then we were getting the final output, right? If we have tried to print hello world, the hello world was being, so we get the output. Okay? So this was the sequence, right? Now this particular file, that is my first program.class, this is generated in something called as bytecode. Okay? Now what is a bytecode? A bytecode is yeah, tell me. Any idea? Huh. This is generated in some form which is not dependent to a machine, right? For example, if we try to compile a C program, if it's a window dependent compilation, then we will get .exe file. If it's a Linux compilation, then we will get .out file and so on. So that is directly the executable file, which is machine dependent, right? But here we are getting something which is in bytecode, which is not dependent to any particular machine. And when I say machine, typically I am talking about the operating system, and the rest of the hardware is controlled by the operating system. ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाइट कोड है, ये ऐसे है जैसे कि आप सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं. ठीक है? अब मैंने एक बंदे को रखा है जो आप सबकी लैंग्वेजेस जानता है, सबकी लैंग्वेजेस जानता है. ठीक है? और मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ एक अलग लैंग्वेज में जो आप सबकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है. ठीक है? वो मुझे समझता है. ठीक है? So he is something which knows a language which is not known to you all, but he also knows the languages of you all, right? So I will say that he knows, and he and we are talking in a virtual language, right? In a virtual language for a virtual machine. If I talk in terms of machine, right? For the bytecode. तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको उस लैंग्वेज में बताया. अब वो बंदा कौन है? जावा है.
अब जावा क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी ट्रांसलेट करेगा एट द रन टाइम मुझको सुन करके, और आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज जिससे भी बात कर रहा होगा उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो क्या करेगा, इंटरप्रेट करके राइट देन एंड देयर एट द रन टाइम इट विल गिव द आउटपुट। ठीक है, तो इसको वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट कोड, बाइट कोड को वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर डजंट एग्जिस्ट सच मशीन। It's not for Windows, it's not for Linux, it's not for Mac OS or any other such language, such operating systems, right? So it's not machine dependent. जब वो machine dependent नहीं है, एक नॉन एग्जिस्टिंग मशीन के लिए है, विच इज अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, हम बस इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसके फॉर्म में ये कोड जनरेट हुआ है, विच इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, कंपाइलेशन का। दूसरा स्टेप क्या था, उसके रन टाइम में ट्रांसलेशन का। अब दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया गया इस प्रोसेस को? सी या सी प्लस की तरह एक सी प्लस प्लस की तरह एक बार में कंपाइल करके क्यों नहीं मशीन जनरेटेड कोड डेवलप कर लिया गया, मशीन डिपेंडेंट जो था? उसका रीजन ये है कि जावा हैज ऑलवेज यू नो काइंड ऑफ बोस्टेड इटसेल्फ एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट? ठीक है, तो अगर वो जनरेट करता किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फॉर्म में, जैसे .exe में या .out में, तो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाता। Now, what is platform independent part in whole this structure is this dot class file. आपने इसको विंडोज प्लेटफॉर्म में कंपाइल किया हुआ है, इसी डॉट क्लास फाइल को उठा करके आप क्या करें, लाइनस पे ले जाएं, और वहां लाइनस का जेडीके यूज करेंगे, उसका जावा यूज करेंगे, जावा माई फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे, वो लाइनस में इंटरप्रेट कर देगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर कोई पूछे क्या कंपोनेंट है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप बोलेंगे डॉट क्लास फाइल जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रही है इन द बाइट कोड, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब डेवलपर्स क्या करते हैं, वो एक सेट ऑफ रिलेटेड क्लास फाइल्स को एक साथ आर्काइव कर देते हैं, एंड दे आर्काइव इन समथिंग कॉल्ड एज अ जार फाइल, जावा आर्काइव फाइल। इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट जार, इट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट जार। आप कोई भी लाइब्रेरी, उसी को लाइब्रेरी भी हम कहते हैं, जावा लाइब्रेरी कहते हैं। अगर आप जावा लाइब्रेरी को डाउनलोड कर रहे हैं, उसको अनजिप करें, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ डॉट क्लासेस फाइल दिखेंगी, डॉट क्लास फाइल जो ऑलरेडी कंपाइल्ड फाइल है। अब वो डॉट जार फाइल उठा करके आप अपने एप्लीकेशन में, चाहे वो मैक की मशीन हो, चाहे विंडोज की मशीन हो, चाहे वो लाइनक्स की मशीन हो, या लाइनक्स में काली वर्जन का मशीन हो, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग, डेबियन हो, रेड हैट हो, किसी में भी आप उठा के उसको डाल दिए, सोलारिस के सिस्टम में भी डाल दिए, ठीक है, इट विल रन, इट विल रन यूजिंग द जेडीके ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन डिवाइस। ठीक है, बात समझ आई? तो अब इससे फायदा क्या हुआ? इस पूरी कहानी से जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस सबको मिल रहा है, इससे फायदा क्या हुआ? आप बुक में पढ़ लेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ये है, तमाम चीजें, बट फायदा क्या है भाई? एक बार कंपाइल करो, बार बार आपको कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, कंपाइल करने में क्या होता है? मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक वर्चुअल मशीन कोड मशीन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको हम बाइट कोड कह रहे हैं, राइट? यानी कंपाइलेशन में पहले तो सिंटेक्स वगैरह चेक होता है, सब चीज सही है कि नहीं है। कोई प्रॉब्लम हुई तो सिंटेक्स कंपाइलेशन में ही आपको बता देगा, है ना, कि एरर है। मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह आपने सिस्टम में एस स्मॉल लिख दिया, तो दैट्स द नेम ऑफ अ क्लास, राइट? सिस्टम उसमें आपको बोलेगा कि भाई ये चीज हम पहचान नहीं पा रहे हैं, वी कैन नॉट फाइंड दिस समथिंग, ऐसा मैसेज आपको दिखेगा। ठीक है, यू विल गेट अ कंपाइलेशन एरर। तो जो सिंटेक्स को फिगर आउट करना, या जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको फिगर आउट करना, maximum amount of work Java has tried with its level best with all upcoming versions कि maximum work push कर ले कहाँ, compilation के टाइम में। ठीक है, ताकि बहुत थोड़ा सा काम बचा रहे, जो सच में प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा टाइड अप है, वो काम बचा रहे, जो एट द रन टाइम वो करेगा जब प्रोग्राम आप एक्सिक्यूट करेंगे यूजिंग द जावा कमांड ऑन द रियल प्लेटफॉर्म, है ना? तो आप मान लीजिए ऐसे कि आपने 70% काम कंपाइलेशन में कर लिया, 30% काम आप क्या कर रहे हैं, एट द रन टाइम कर रहे हैं, और इवन मे बी लेस देन दैट। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले क्या था, पहले जावा वाज क्रिटिसाइज्ड टू बी वेरी स्लो,
रीजन क्या था, कंपाइलेशन में उतना ज्यादा मतलब चीजों को वो कंपाइल नहीं कर पा रहा था, ज्यादा फोकस इंटरप्रिटेशन की तरफ था, तो मैक्सिमम वर्क जो होता था इंटरप्रिटेशन में होता था। दे केप्ट ऑन शिफ्टिंग थिंग्स विद रियली स्मार्ट टेक्निक्स टुवर्ड्स द कंपाइलेशन। तो अब मैक्सिमम काम आपका कंपाइलेशन में हो जा रहा है, थोड़ा बहुत काम जो बच रहा है वो इंटरप्रिटेशन में हो रहा है, जो रियली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपने कंपाइल किया एक बार, उसकी लाइब्रेरी बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन में आपने जो प्रोजेक्ट में आप ऐड कर लेंगे उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको दोबारा से कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, वो इंटरप्रेट तो रन टाइम होना है, और वहाँ पे जो सब बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होना है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क कंपाइलेशन में हो चुका है ना। तो इस तरह से स्पीड को धीरे धीरे जावा ने ऑप्टिमाइज किया, वरना स्टिल जावा इज स्लोअर देन सी प्लस प्लस, इट इज स्टिल स्लोअर देन सी प्लस प्लस। रियल टाइम एप्लीकेशन कभी जावा में कोड नहीं होते हैं, है ना, कभी भी कोड नहीं होंगे, राइट, दे विल स्टिल गो फॉर द सी प्लस प्लस और सी, ठीक है, करेक्ट। सो there are three sets of languages. One is called as purely compiled language, जिसमें आपका सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस हो गई। एक होता है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जिसमें जावा आ गई, जिसमें कंपाइलेशन भी हो रहा है और इंटरप्रिटेशन दो फेज में काम हो रहा है। कंपाइलेशन में मैक्सिमम एफर्ट को पुश कर दिया गया है ताकि इंटरप्रिटेशन में उतना ही काम हो जितना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। और तीसरी सेट ऑफ लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे आपकी एचटीएमएल हो गई, पाइथन है, हाँ, लेकिन पाइथन को हम चाहें तो उसको हाँ कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं आप, वो टेक्निक है उसका अवेलेबल, उसमें ऑप्शंस होते हैं उसमें, ठीक है, वो कर सकते हैं, बट टिपिकली वी रन इन ए प्योरली इंटरप्रेटेड मोड, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हम कोई ऐसा सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसको हिट्स पर सेकंड लेना है, राइट, टाइम क्रिटिकल काम नहीं है, आप एनालिसिस का काम है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में अपना चल रहा है, हो करके आपको एक रिपोर्ट से जनरेट किया, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो चलता रहेगा काफी टाइम तक, कई कई इपॉक चलने के बाद वो आपको रिजल्ट देगा, राइट। सो देयर time management is not that critical as a application where like an enterprise application where it is required more generally, ठीक है, वहाँ टाइम का बहुत बहुत मतलब होता है। और अगर रियल टाइम एप्लीकेशन पे चले जाए तब तो फिर एक एक माइक्रो सेकंड आपके लिए मैटर करेगा फिर, ठीक है। तो जावा इज समवेयर इन बिटवीन इन द परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्यूशन टाइम, ठीक है, to the compiler, purely compiled language and interpreted language, ठीक है, but more towards the compiled language, ठीक है, इसे इतना ऑप्टिमाइज कर लिया है आपने को, ठीक है, ये बात समझ में आई। So we have learned that Java is a compiled and interpreted language, right? It generates something called as a bytecode, and this bytecode is nothing but the dot class file, which is platform independent file that could be transported to any platform and can be interpreted, ठीक है, to give the output, क्लियर है। अब जो हमें एक बार हमने कंपाइल कर लिया है, बार बार हमें कंपाइल नहीं करना पड़ रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे जा करके, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आज को मेरा सिस्टम है विंडोज एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है, विंडोज सर्वर पे चल रहा है। अब वी नो दैट विंडोज सर्वर अगर आप क्लाउड वगैरह पे भी देखेंगे तो नॉर्मली जब आप विंडोज मतलब प्लेटफॉर्म का आप अगर उसके इमेज अगर परचेज करेंगे तो सो दैट विल बी अ लिटिल मोर, इनफैक्ट अ लॉट मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू अ लाइनेक्स और अ यूनिक्स, नॉट यूनिक्स बट लाइनेक्स वर्जन, राइट। तो कल को क्या हुआ कि भाई जो हमारा हमारा जो क्लाइंट था जिसके लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसको लगा कि भाई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, ठीक है, एंड ही वांट टू मूव टू अ लाइनेक्स मशीन फ्रॉम अ विंडोज मशीन। अर्लियर विंडोज मशीन के लिए हमने उसका एप्लीकेशन डेवलप किया था, राइट। नाउ इफ बिकॉज दिस इज अ जावा एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी इन थियोरेटिकल फ्रॉम द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है, मैं उसको लाइनेक्स मशीन में एज इट इज जाके डिप्लॉय कर दूंगा और उसको चलना चाहिए, राइट, चलना चाहिए। अब उसमें क्या होगा, अगर मुझे दोबारा से कंपाइल करना पड़ता है तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं जो मशीन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो ऐसी डिपेंडेंट होती हैं जो मतलब ब्रेक करेंगी एट अगर आप रिकंपाइल करेंगे उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे, अगर वो ब्रेक करेंगी तो फिर पूरी टेस्टिंग साइकिल आपकी गुजरेगी। टेस्टिंग साइकिल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन में भेज रहे हैं ना कोड को। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब एक क्लाइंट मशीन होगी इसको हम बोलते हैं डेवलपर इन्वायरमेंट,
डेवलपर एनवायरनमेंट, जो मेरी मशीन है, जो मैं कंपनी में मुझे मिलेगी, लैपटॉप मिलेगी, दैट इज द डेवलपर एनवायरनमेंट। उसके बाद मैं इसको कोड को डालूंगा रिपोजिटरी में, जैसे आप गिटहब रिपोजिटरी यूज करते हैं, वहां भी रिपोजिटरी होती है, उस रिपोजिटरी में डालूंगा। वहां से उसकी ब्रांच बन करके वो जाएगी टेस्टर्स के पास, ठीक है। वो टेस्टर जो टेस्ट करेंगे, जिस मशीन पे टेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद वो मूव करेगी इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट में। फिर वहां से वो मूव करेगी जो क्लाइंट का एक्चुअली सर्वर है, जहां पर रियली जाकर के इसको काम करना है, ठीक है। दैट्स अ वेरी हाई एंड सर्वर, मे बी अ सेट ऑफ ब्लेड सर्वर्स एंड सो ऑन, ठीक है। क्लस्टर्स एनवायरनमेंट में होगा, सब कुछ होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहां वो एक्चुअली रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट्स दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये जब इंडस्ट्री में जाएंगे, ये सारे वर्ड्स आप कॉमनली सुनेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहते हैं उसको। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाने से पहले आपको, यू डोंट हैव टू गो टू ऑल दिस चेन ऑफ रिकम्पाइलेशन एंड देन फिक्सिंग अप द थिंग्स एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स व्हिच मे टेक मंथ्स, ठीक है। हम छोटे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के स्केल के लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बच रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, फाइन। तो एक काम करते हैं, एक सीधे इक्लिप्स सब ओपन करते हैं। देखिए, जब आप दोबारा ओपन करेंगे, क्या दिखाएगा आपको? वर्क स्पेस दिखाएगा, जो आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ठीक है। वर्क स्पेस इज व्हाट? इट्स अ फोल्डर वेयर ऑल योर code is saved along with the project, along with the binaries, that means dot class files। मैंने लॉन्च कर दिया, क्या हुआ? दोबारा आ गया था, मुझे लगा था। दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अच्छा ये बताइए, सी प्लस प्लस सबने काम किया है, राइट? तो ऐसा ऐसा क्या रीजन था कि सी के बाद सी प्लस प्लस आपको सिखाया गया? ऊप्स के कंसेप्ट, है ना? जो लैब प्रोग्राम करे थे, कौन कौन से लैब प्रोग्राम करे थे सी प्लस प्लस में? राइट, इससे करे होंगे, राइट। जब आप सी के कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, आपसे प्रोग्राम जो कराए जा रहे हैं, वो सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस टाइप के प्रोग्राम, ठीक है, कराए जाते हैं। लेकिन जब आप सी प्लस प्लस के लैब में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि फोकस जो है वो इन सबसे एल्गोरिथम बेस्ड प्रोग्राम से हट करके वो फिर शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, राइट। तो फिर आपको इनहेरिटेंस के प्रोग्राम मिलेंगे, फिर आपको डायनेमिक बाइंडिंग वगैरह इन सब से रिलेटेड प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाएंगे करने के लिए। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? नहीं, वो तो ठीक है। सी प्लस प्लस में नहीं, सी प्लस प्लस ठीक है, उसमें आप दोनों तरह से चल सकते हैं, सी की तरह प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट सी इज ऑलरेडी देयर। आप सी प्लस प्लस में जा करके सी के स्टाइल में प्रोग्राम क्यों करेंगे? है ना? इट इज मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट, राइट?
करना तो सी में कर लेते फिर, है ना। सी प्लस प्लस बनाने की जरूरत ही क्यों थी, एक नई लैंग्वेज बनाने की जरूरत ही क्यों थी फिर, मतलब क्या एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा था। अगर नहीं होती तो कौन सा ऐसा काम है जो आप सी में नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते ना, आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, बट ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी एप्लीकेशन आपको सी में कोड करना हो। कोड लेंदी होता है, रीयूजेबिलिटी कम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। राइट। तो भाई अगर कोड लेंदी हो जाता है, मतलब फिर क्या करते हैं आप, वहां फोकस क्या होता है, अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाए तो आप कहाँ से सोचना शुरू करते हैं, मेन मेथड से। मेन मेथड से आपने सोचना शुरू करा, फिर क्या सोचते हैं, वो मेन मेथड कौन कौन से नए नए फंक्शंस को कॉल करेगा, राइट। उन फंक्शंस पे जाते हैं। जब फंक्शंस में जाते हैं तब सोचते हैं कि भाई फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल कौन सा होगा, किसी ग्लोबल वेरिएबल की अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच अगर इंटरेक्शन आपको कराना है तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि ये जो अप्रोच है, ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब आपने सबसे पहले उस फंक्शन से सोचना शुरू किया जो कि इंटीग्रेशन का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपने सोचना शुरू करा वो नेक्स्ट लेवल के बिहेवियर, यानी नेक्स्ट फंक्शंस जो कॉल होंगे, नेस्टेड फंक्शंस कॉल होंगे, उनके लेवल पे सोचना शुरू किया, है ना। उसके बाद कहीं जाके आपने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल यानी डाटा के बारे में सोचना शुरू करा, राइट। ये अप्रोच था। दिस इज वेरी क्लम्सी टू मैनेज, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन कॉल में किसी एक रियल एप्लीकेशन जो लार्ज एप्लीकेशन है उससे आप खो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे एक लाइब्रेरी में आप इंटर करें और वहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब शेल्स ऑर्गेनाइज नहीं है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर कैटेगरीज ऑथर के नाम जैसे ऑर्डर में लगे होते हैं नेम के हिसाब से, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। तो आपको खोजने को कहा जाए एक पूरा सा किताबों का ढेर पड़ा हो एक बड़े से कमरे में, तो एक सब्जेक्ट की एक ऑथर की किताब तलाश करने में आप पूरा दिन लगा देंगे, ठीक है। सो स्केलेबिलिटी बिकम अ रियल इशू, ठीक है, विद प्रोसीजर लैंग्वेजेस। जब जब आपके एप्लीकेशन जब ग्रो हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, राइट, तो उसकी साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ रही है तो उसको इस तरह से मैनेज करना है कि आप आसानी से चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम रीयूज कर सकें कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको चाहिए। रीयूजेबिलिटी ऐसा नहीं है, जहां भी मॉड्यूलरिटी टर्म आ गया ना, वहां पे रीयूजेबिलिटी ऑलरेडी है। और मॉड्यूलर का मतलब फंक्शन, इट्स अ मॉडुलर यूनिट, राइट। आप फंक्शन को रीयूज जरूर कर सकते हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जिसमें जितना आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलेगा, राइट, है ना। उसमें आप क्लास एक लार्जर लेवल पे आ गए, ठीक है, एक एंटिटी के फॉर्म में आ गए, राइट। तो जब आप सी प्लस प्लस या जावा या सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एग्जैक्टली चेंज द थिंकिंग और द वे दैट यू थिंक व्हाइल यू वेर प्रोग्रामिंग इन प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक, उसका अपोजिट सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो फॉर एग्जांपल इट्स एप्लीकेशन फॉर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें पहला, अच्छा, जब भी एप्लीकेशन बिल्ड होता है आप बहुत लिमिटेड स्कोप लेके चलते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सटेंड करते हैं सिस्टम को, राइट। अभी मैंने कहा कि मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो इतना भी मुझे अगर मिल जाए, अरे इतना भी मिल जाए कि भाई जो आपका बेसिकली जो फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट को मैनेज करने का सिस्टम मिल जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उस पर आगे डेवलप करते जाएंगे। हाँ, फीचर सेट करते जाएंगे, फिर उसमें फिर आपका बहुत कुछ अपने आप आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे एक मॉड्यूल से, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि मैंने, जाहिर सी बात है, पहले लोग एक पेपर पे या किसी भी ऐसे फ्रेमवर्क पे डिजाइन करते हैं जिसमें आप डायग्राम के थ्रू आप मॉडल बना सके। तो खैर वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई एक नया प्रोजेक्ट हम बना लें, जावा प्रोजेक्ट से, इसका नाम हो गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, फाइन। तो ये एक नया प्रोजेक्ट मेरा बनकर के आ गया। अब इसके अंदर एसआरसी फोल्डर आपको दिख रहा है, एसआरसी का मतलब
जहाँ पे सोर्स कोड जाएगा। तो चूंकि ये एक स्पेसिफिक मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक पैकेज बनाऊंगा, राइट। ये क्या हो गया, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट मॉड्यूल, अपॉइंटमेंट मॉड्यूल, ठीक है, करेक्ट। अब मैं जब सोचना शुरू करूंगा, तो अब मैं सबसे पहले डाटा से सोचना शुरू करूंगा। और डाटा किस फॉर्म में होनी चाहिए भाई, क्लास और ऑब्जेक्ट से सारे फैमिलियर हैं। क्लास क्या होती है, इट्स नहीं, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन, अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्शन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं, ठीक है, बहुत फॉर्मल डिफिनेशन में नहीं जा रहा हूं मैं। सो क्लास इज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्शन एंड और अ डिजाइन, ठीक है, और अ टेम्पलेट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स आर द रियल इंस्टेंसेस और द ब्लूप्रिंट्स जो बनेंगे। जैसे चेयर की बात मैं करूं, तो चेयर में बात करूंगा, जैसे इस पर्टिकुलर चेयर की डिजाइन क्या है, इसका एक सिंगल लेग है, इंस्टेड ऑफ 4 लेग्स इट हैज अ सिंगल लेग, राइट। इसका एक हाथ पे लिखने का जो बेस है वो है, राइट। कुछ बैठने की जो डायमेंशन है, स्क्वायर जो बना हुआ है, मतलब बेस आपका है, उसका सर्टेन डायमेंशन होगा, बैक रेस्ट का सर्टेन डायमेंशन होगा, राइट। ये सारी चीजें किस मटेरियल से बना हुआ है ना, किस कलर का है, तमाम चीजें होंगी। तो वो एक डिस्क्रिप्शन हुआ और डिटेल हुआ। उसको रेप्लिकेट करके इस क्लास में जितनी सारी चेयर्स आपको दिख रही हैं, वो सारे क्या हुए, रियल टाइम इंस्टेंस हुए विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, राइट। अब रियल टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, या क्लासरूम में कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब रियल टाइम ऑब्जेक्ट हम एप्लीकेशन के हिसाब से सोचें, इसका मतलब क्या, वो कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे फिर, मेमोरी में, राइट। 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स को बना रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलोकेट होंगे मेमोरी में, जो कि सबके डिटेल्स अलग अलग होंगे, राइट, करेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। तो अभी जो हमारा फोकस होगा वो कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रादर वी कॉल इट आइडेंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी के फॉर्म में शुरू हो रहा है। तो अब देखिए आपका सोचने का तरीका बदल गया। आप इंटीग्रेशन से यानी मेन मेथड से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप सबसे पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं, डाटा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डेटा आपका, डेटा का एक फॉर्म क्या हो गया, एंटिटी हो गई, राइट। तो बताइए क्या क्या एंटिटी हो सकती है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। और जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, अगर इसका एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना हो, तो आप इमेजिन करिए जो कुछ आप मैनुअली करते हैं, वो सब करने के लिए अगर उन चीज़ों को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में, उनके एंटिटीज के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में अगर हमें नाम देना पड़े, तो हम किस फॉर्म में नाम देंगे, क्या क्या नाम देंगे। कभी कभी ऐसा होगा जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, इनिशियल लिस्ट, ठीक है, तो ये लिस्ट आप एक बार बनाएंगे, फिर उसमें से कुछ चीज़ों को स्ट्राइक आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो दूसरा नाम आ रहा है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल हो सकता है ना, स्ट्राइक आउट करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें होंगी, ठीक है। बट इनिशियल लिस्ट आपको जो चाहिए वो तो हम सोच ही सकते हैं, राइट। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचिए कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप पूछिए क्लाइंट से कि भाई क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम को आप अपने स्टेट करके बताइए मुझे। तो कहेगा कि भाई ऐसा है कि जब पेशेंट होता है, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है, ही जस्ट कॉल्स अप और गो टू आवर पोर्टल, और पोर्टल में जाकर के क्या करता है कि वो बताता है कि इसको फला डॉक्टर का फला डे का फला टाइम का स्लॉट चाहिए, ठीक है। हम स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। पूछते हैं भाई आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, यानी पहले आप दिखा चुके हैं, या दिस इज द फर्स्ट टाइम विजिट टू द डॉक्टर, डिपेंडिंग अपॉन वी चार्ज द रजिस्ट्रेशन फीस और वी जस्ट चार्ज द फॉलो अप फीस जो भी होती है। हॉस्पिटल का ड्रामा होता है ना, हर साल उनको रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए कुछ भी नहीं करने के लिए बस, है ना। तो ये चक्कर होता है। उसके बाद हम वो क्या करते हैं, उस डॉक्टर के स्लॉट में वो टाइम ब्लॉक कर देते हैं। अब कोई अगर दूसरा पेशेंट देखेगा तो उसको स्लॉट में वो, या पेशेंट के बिहाफ पे अगर जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कॉल करने पर वो फुल क्रेडिट सिस्टम देख रहा है, तो बताएगा सर ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है, दूसरा स्लॉट ये फला अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह के स्लॉट्स मिलेंगे आपको, राइट, डॉक्टर के, हर डॉक्टर के। डॉक्टर इज अगर मान लीजिए फिर क्या होता है कि एक डॉक्टर का एक दिन का अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है एंड द पेशेंट इज लिटिल क्रिटिकल, तो कहेगा भाई ऐसा है किसी और डॉक्टर को मुझे दे दो। तो देखेगा इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। वो दूसरे डॉक्टर्स का नाम जो है, जो बैठा बनता है रिप्रेजेंटेटिव है, सजेस्ट करेगा। और द पेशेंट, अल्टरनेटिवली द पेशेंट विल जस्ट लुक डाउन अपॉन द लिस्ट इन द पोर्टल
to figure out the qualification and other things and the doctors available, their slots availability and all those things. ठीक है, फिर उन पे जाएगा बुक करने के लिए. देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे एलॉबरेट होती जा रही है, राइट, है ना. फिर बुकिंग होगी, बुकिंग होने के बाद उसके पास एक एसएमएस कंफर्मेशन आएगा, एसएमएस का कंफर्मेशन आएगा जिसमें उसका डेट एंड टाइम लिखा होगा, कुछ यूनिक आईडी होगी समथिंग, राइट, जिससे मैच किया जा सकता है. यूनिक आईडी में भी हिज टेलीफोन नंबर कुड बी यूज्ड एज अ यूनिक आईडी बिकॉज़ टेलीफोन नंबर इज अ यूनिक. अब टेलीफोन नंबर डाल करके जो जब आप फिजिकली जब जाएंगे हॉस्पिटल में तो बंदा सर्च कर सकता है कि आज की बुकिंग आपकी है कि नहीं है ना. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने नाउन मिले आपको, उन नाउन को पहले लिस्ट डाउन करिए. दो एंटिटीज. इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको जितने नाउन मिले सिंपली पहले उनको लिस्ट डाउन शुरू करिए. पहला स्टेप तो ये हो गया, आसान तरीका. वी आर ट्राइंग टू मूव थिंग्स फ्रॉम एन आर्ट टू अ साइंस, है ना. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही मतलब जो जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो चीज आसानी से कर लेते हैं. बट अगर उस चीज को अगर आर्ट से साइंस को मूव करें तो आप क्लियर कट स्टेप बता सकते हैं कि इस तरीके से तुम डिजाइन करो या इस तरीके से फॉलो करो तो तुम एक अच्छे आउटपुट पे आ जाओगे. आ रही बात समझ में? तो नाउन्स बताना शुरू करिए. चलिए, ओके. डिपार्टमेंट का टेक्निकल टर्म क्या है? मेडिकल टर्म डिपार्टमेंट ही कहते हैं. चलिए हम फिलहाल डिपार्टमेंट ही मान लेते हैं. डिपार्टमेंट मतलब जैसे कार्डियोलॉजी हो गई, है ना, या मेडिसिन हो गई, ठीक है. डिपार्टमेंट तो एक क्लास बनेगी आपकी डिपार्टमेंट. क्या इस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या मेन मेथड की जरूरत है? मेन तो एक ही क्लास में जाएगा जहां से प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है. तो अगर हम 100 क्लास भी बना रहे हैं तो हमें शायद मेन की जरूरत एक ही में पड़े, और अगर ये वेब एप्लीकेशन है तो शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिर वो कंटेनर मैनेज करेगा. कंटेनर मतलब सर्वर जो है, ठीक है. तो हर जगह मेन नहीं रहेगा, ठीक है. तो यहाँ मेन पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यानी मेन जनरेट नहीं होगा. सिंपली क्या जनरेट होगा, एक स्केलेटन जनरेट होगा कि भाई अपॉइंटमेंट मॉड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट नाम की क्लास बन गई है. अब इसमें क्या डालना है वो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, नाउन. ओके, सिंपली मैं डॉक्टर कह रहा हूं, ठीक है. फिर उसका नेम, उसकी सीनियरिटी, उसकी क्वालिफिकेशन सब इसके अंदर कैप्चर हो सकती है, राइट. तो मैं डॉक्टर कह रहा हूं. और बताइए, अपॉइंटमेंट फी. क्या करें बताइए. इनका कहना है कि जो फी है वो डॉक्टर से रिलेटेड है. है, हाँ नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी. नहीं ही सीरियस, ओके. टैक्सेस गवर्नमेंट तो छोड़ने वाली नहीं ना है, तो वो सारी चीजें आएंगी, फी में ही आएगी. तो अगर आप फी की बात करेंगे ना तो फिर अलग अलग फीस होंगी. फिर एक होगी डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस जो डॉक्टर पे डिपेंडेंट करेगी. एक होगी आपका रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एग्जांपल. एक होगा टोटल सम पे जो आपका जीएसटी वगैरह लग रहा है वो सारी फीस होगी, है ना. कई बार आप देखेंगे किसी किसी एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो सिर्फ पोर्टल से बुक करने के लिए कन्वीनियंस फी चार्ज कर लेते हैं, है ना. हालांकि उनके बिजनेस के लिए वो पोर्टल बनाया है उन्होंने और कन्वीनियंस फी आपसे चार्ज कर रहे हैं. तो खैर ये सारी चीजें रहेंगी, राइट. हाँ, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है. तो जब फी की कैटेगरी में आप आएंगे तो वो उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको अलग अलग फॉर्म में, ठीक है. तो सिंपली हम एक काम करते हैं, अभी अभी हम एक फीस क्लास बना लेते हैं एंड देन वी विल कीप ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट ऑल अदर फीस आर एप्लीकेबल, ठीक है. लेट्स से फिलहाल हम कंसल्टेशन फी बना लेते हैं, ठीक है, राइट. बट वी हैव अ रिलेशन. कंसल्टेशन फीस इज दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फी, देन इट मस्ट गो विद द डॉक्टर. भले ही हमने एंटिटी यहाँ बना ली है लेकिन यूज कहाँ होगा उसका, डॉक्टर में, डॉक्टर में होगा, राइट.
तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर में जो फील्ड हम बनाएंगे उसमें एक फील्ड कंसल्टेशन फीस होगी जो डॉक्टर के साथ एसोसिएशन बताएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसल्टेशन CON है ना, कंसल्टेशन फी करके एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। रेफरेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूं मैं इसको, हाँ ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं है, ये फी जो वेरिएबल है ये इस क्लास के यानी कंसल्टेशन फी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए बनाया गया है। सो इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल, इट्स नॉट अ प्रिमिटिव वेरिएबल। इंटीजर होता है, इंटीजर एक्स होता है, so that x could be called as a primitive variable। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे ऐसे लिखते हैं int x, राइट, और सिंपली लेट्स से नॉट x बट int एज ही कर लेते हैं। ठीक है, कि हम राउंड फॉर्म में एज लिख देंगे। ठीक है, तो अब जो एज है वो इंटीजर टाइप की है, दिस इज प्रिमिटिव वेरिएबल और अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। सो व्हाट इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप? This is a type of data type which is available in all the languages right from the primitive type। मतलब प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एजेस, है ना, नाम ही आपको बता रहा है ना। जब सी प्लस प्लस नहीं आया था तो भी सी में इंट था, है ना, इंट था, कैर था, फ्लोट था, ये सब चीजें थी, राइट। इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, और ये उस जगह स्टोर भी नहीं होती हैं जिस जगह ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस स्टोर होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो इंस्टेंसेस जब इसका बनेगा, अभी तो ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल है ना, जब न्यू से इसका इंस्टेंस बनाएंगे तो ये जो स्टोर होगा वो आपका हीप में जाके स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन जो ये वेरिएबल है ये अगर स्टोर होंगे तो ये डॉक्टर क्लास के अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जाके स्टोर होने वाले हैं, राइट। हीप इज द लार्जेस्ट चंक ऑफ मेमोरी, इट्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ मेमोरी सेपरेटेड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चूंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो ये डॉक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, चलो मान लेता हूं मैं, हीप में जाएगा। अगर ये मेथड लोकल वेरिएबल होता है यानी मेथड भी मैंने डिक्लेयर करा होता तो ये हीप में नहीं जाता बल्कि स्टैक में जाता। ठीक है, विद टाइम वी विल रिपीट दोस थिंग्स। तो अगर अगर ये चीज एक बार में आप समझ नहीं आ रही है तो परेशान मत हो, हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बिहेवियर वे में भी प्रोग्राम में वो कैसे आप डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। सो int is something what we call as a primitive variable, and cf what we have declared, not initialized, we have just declared। जैसे int x किया है ना, int x इज इक्वल टू 5 करते तो हम कहते हैं कि इनिशियलाइज कर लिया, है ना। उसी तरह cf को हमने भी डिक्लेयर किया है ऑफ a variable which is a reference variable which can hold the object of consultation fee। जब भी बनाएंगे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे तब के लिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे भी हैं इस टॉपिक पर प्रिमिटिव वेरिएबल्स है, तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रिमिटिव वेरिएबल्स। int is a primitive variable, then byte is a primitive variable, से मैं b से रिफर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, then char is a primitive variable, c से रिफर कर दे रहे हैं। और बताइए, है डबल, डबल, फ्लोट, ये क्यों एरर दे रहा है, डबल के बाद वेरिएबल का नाम नहीं दिया, राइट। तो ये हाथ के हाथ कंपाइल भी कर रहा है ना, हाथ के हाथ कंपाइल कर रहा है, राइट। अभी देखिए जैसे ही आपने किया, आईडी का फायदा आपको मिल रहा है कि भाई ये आपको हाथ के हाथ आपकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व भी कर दे रहा है दिखा करके। देन boolean, what are the values that can go in a boolean? True and false। C++ में हमने 0 1 भी सुना होगा, बट इन जावा इट्स नॉट 0 and 1, इट्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर आप बूलियन में जैसे करना चाहेंगे आप, अच्छा बाइट बी, देखो क्यों एरर दे रहा है बताओ मुझे जरा, दोनों में बी दे रखा है ना, बाइट
इसको मैं बूल कर दे रहा हूँ, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम गोज, ठीक है। तो बूल को अगर मैं असाइन करना चाहूंगा तो इसको मैं ऐसे करूंगा, TRUE, देखिए ब्राउन कलर में ट्रू दिख रहा है आपको, और FALSE स्मॉल लेटर से। सो देखा मैंने कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स आपको पता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, राइट। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। उनका आईडी पे आप देखेंगे कलर अपने आप चेंज हो करके कुछ मैजेंडा कलर ये जो आ रहा है ये आपका आ जाएगा, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दीज आर कीवर्ड्स, राइट। तो ये सारे प्रिमिटिव टाइप के लिए भी कीवर्ड्स है, ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, पब्लिक क्लास भी कीवर्ड है, पैकेज भी कीवर्ड है, तो सारे जो आपको मैजेंटा कलर में दिख रहे हैं ना इस डिफरेंट कलर में, ये सारे कीवर्ड्स है, दीज आर जावा कीवर्ड्स, ठीक है। इनका नाम यूज करके आप कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। व्हाट इज आइडेंटिफायर? जैसे वेरिएबल्स, नेम ऑफ अ मेथड और अ फंक्शन, नेम ऑफ अ क्लास। तो मैंने जनरल टर्म यूज किया आइडेंटिफायर। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ना तो उसी तरह से जवाब दे। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? समथिंग दैट आइडेंटिफाइज, ठीक है, समथिंग दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग, ठीक है, ठीक है। अब उसका मतलब क्या हुआ, इट कुड आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, इट कुड आइडेंटिफाई अ कांस्टेंट, दैट मींस इन जनरल फील्ड, it could identify a function, it could identify a instance of a class, ठीक है, और the name of a class object, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो जो कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जवाब हमेशा प्रिसाइज देने की कोशिश करिए ताकि जो जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उस टॉपिक पे उसके पास लिटरली आगे आप क्वेश्चन पूछने को न बचे, प्रिसाइज। उससे उसको एक्सटेंड करके पूछेगा वो, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो समझ जाएगा कि आपका नॉलेज लेवल जो है वो साउंडनेस है उसके अंदर, ठीक है। इसी चीज की प्रैक्टिस होती है वाइवा में, जो आपके लैब के वाइवा होते हैं ना, इसी चीज की प्रैक्टिस होती है। तो वाइवा को मतलब उसको आप ऐसा मत सोचिए कि भाई ठीक है चलो पास तो हो ही जाना है कि इधर से बस निपटाना है, ऐसा नहीं, प्रॉपर्ली तैयार हो किया उसके लिए, क्योंकि वो समझ लो आप मॉक इंटरव्यू है आपका, और इसीलिए उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो एक्सपर्ट आता है वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, है ना। यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट, ठीक है, कैसे अपने आप को आपको पोलाइट बिहेव भी करना है, सेंसेबल बिहेव करना है, ठीक है। ये सब चीज वाइवा में सीखने की है, हर सेमेस्टर वाइवा कराते हैं ना, इतनी सारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन अगर उसको सीरियसली लेंगे तो उसका फायदा होगा, है ना। एंग्जाइटी पे कंट्रोल करना आएगा आपको, है ना, और एंग्जाइटी पे कंट्रोल तब होगी जब पढ़ के आओगे, ऑनेस्टली, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शाकिर, ठीक है, पढ़ना बेटा, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को सच में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 4 साल जो आपके हैं, ये 4 साल आप वेस्ट कर सकते हैं और 4 साल के बाद धक्के खा सकते हैं अगले 2 साल के लिए, या फिर ये 4 साल के बाद बड़ी आसानी से कुछ महीनों के अंदर अच्छी जॉब ले सकते हैं और फिर उस मतलब ह्यूमिलेटिंग प्रोसेस से बच सकते हैं। और उसमें क्या फ़ायदा होता है ना, जब आप खुद को एस्टेब्लिश करके चलते हैं ना, किसी चीज़ को अच्छे से आप सीख करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे जो आपके पीयर्स हैं, जो उतने उस लेवल तक आपसे मतलब कंफर्टेबल होके नहीं आए हैं, आपको फ़ौरन आप पे ट्रस्ट ज़्यादा किया जाएगा। आपको ज़्यादा अच्छे काम मिलने शुरू हो जाएँगे। वहीं से वो चीज़ आपको आगे खींच ली जाएगी। ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको किस सैलरी पे आप जॉइन कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप आईआईटी से आ रहे हैं, ठीक है, एक लेवल पड़ता है, क्योंकि पहली जो सैलरी होगी उनकी कहीं ज़्यादा होगी, है ना? बट विथ कोर्स ऑफ टाइम जब आप जॉब स्विच करेंगे, तो फिर आप मैंने अपने इंडस्ट्री के करियर 9 साल गुज़ारे हैं 2013 तक, है ना? उसमें मैंने जब जॉब चेंज किया है तो 70-80% तक राइज़ देके मैंने 1-2 बार किया है जॉब स्विच, ठीक है? 50% नॉर्मल होता है, 50% आप नॉर्मल सोचेंगे, वरना जॉब क्यों चेंज करेंगे आप, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है? बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएँगे सैलरी के टर्म में भी और अच्छा काम सीखने के टर्म में भी, ठीक है? बस ये थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? और कोई बचा प्रिमिटिव? शॉर्ट से एस, लॉन्ग से एल, एनीथिंग एल्स? कितने हो गए? 8 हो गए? फाइल, फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कांस्टेंट बनाने के लिए होता है, इतना ही है, राइट? एंड व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक,
लेट्स सी वन मोर थिंग, ये जितने भी आपके प्रिमिटिव टाइप हैं, इनके करस्पॉन्डिंग है कांस्टेंट। देखो जैसे इंटीजर आपके पास है ना, इसी के ये वेरिएबल है, राइट, इंटीजर एज इज वेरिएबल, इसी के आगे आप फाइनल लगा देंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी पूछ लिया है इसलिए बता दिया है, अदरवाइज आगे क्लास में ये आएगा, प्रॉपर्ली हम करके देखेंगे, ठीक है, लाइव करके देखेंगे चीज, ठीक है। हाँ, साइन असाइन का क्या मतलब होता है बताओ? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूँ। देखो टर्म जो है आपको खुद बता रहा है कि क्या होता है ना। इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे इंटीजर अगर 4 बाइट का है, यानी यानी 4 बाइट का मतलब क्या होगा, कितने बिट्स होंगी, 32 बिट्स होंगी, राइट। तो एक बिट उसमें, एक बिट में क्या होती है, जीरो या वैल्यू, वन वैल्यू होती है। तो जीरो अगर आप पॉजिटिव मान ले, वन को अगर निगेटिव मान ले फॉर एग्जांपल, तो एक बिट जो होगी वो साइन को स्टोर करने के लिए जाएगी कि पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है। सिर्फ 31 वैल्यू ही यूज होगी कितने में, डाटा को स्टोर करने में, यानी एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करने में साइन के अंदर। अनसाइंड जैसे कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर को इस बात से मतलब ही नहीं है कि प्लस है कि माइनस है। तो कैरेक्टर का जो मान लो अगर एक बाइट होती है, तो पूरे के पूरे 8 बिट जो जाएंगे वो डाटा को स्टोर करने में जाएंगे, उसमें एक बिट आपका कंज्यूम नहीं होगा साइन या अनसाइन वैल्यू को स्टोर करने में। क्लियर हो गया? तो नाम से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? देखो लैंग्वेजेस में कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन अमूमन जो होता है वो जो जो आपका कन्वेंशन है वो फॉलो होता है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मली 4 बाइट अगर इंटीजर में वहाँ यूज़ हो रही है, तो यहाँ भी 4 बाइट ही यूज़ हो रही है ना? लेकिन कई बार होता है कि लैंग्वेजेस अपने मतलब उसके लिए ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह पर्पज़ के लिए या किसी तरह दूसरे पर्पज़ के लिए चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट दे विल गिव इन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? क्लियर? अच्छा, तो ये जितने भी प्रिमिटिव टाइप है ना, इनके करस्पॉन्डिंग क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है? जैसे स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ द क्लास, इट्स नॉट इन द प्रिमिटिव, ठीक है? स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ इट्स होल्डिंग अ कैरेक्टर अरे, ठीक है? हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल प्रिमिटिव है, लेकिन कैरेक्टर अरे हम बनाना चाहे तो अलग से बना सकते हैं, उसको एज अ डाटा टाइप, एक सेपरेट डाटा टाइप स्ट्रिंग के फॉर्म में बना दिया गया, ठीक है? बट इट्स नॉट वन ऑफ दोज with the same name as of the primitive or the same purpose as of the primitive. So we have got classes like integer, say I, स्पेलिंग गलत है, INTEGER होनी चाहिए ना, ठीक है? इंटीजर फॉर इंट, देखिए ये ब्राउन नहीं हुआ, मैजेंटा नहीं हुआ, इसका मतलब इट्स द नेम ऑफ द क्लास, आई कैपिटल भी शुरू हो रहा है, ये भी कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, राइट, क्लास का। देन बाइट से बी ऑब्जेक्ट कर देता हूं मैं इसको, ठीक है? इसको आई ऑब्जेक्ट कर देता हूं, राइट, मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल का क्या होगा? कैरेक्टर, ठीक है? इंटीजर और कैरेक्टर फुल फॉर्म में यूज होंगे, सी ओबीजे, ठीक है? और बताइए, डबल है, DOU डबल, डी ऑब्जेक्ट, ठीक है? और बताइए कौन सा बचा, फ्लोट बचा, फ्लोट एफ ऑब्जेक्ट। देन अब क्या बचा, बुलियन बचा, बुलियन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, बूल ऑब्जेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा, सेम प्रॉब्लम, राइट, बूल ऑब्जेक्ट। देन what is left then, short, short s ऑब्जेक्ट, ठीक है? देन लॉन्ग, लॉन्ग एल ऑब्जेक्ट,
तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं उनके करस्पॉन्डिंग जावा ने ऑलरेडी क्लासेस बना के आपको दे रखी है, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अनदर क्लास, स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट, ठीक है, STRING। अब ठीक है, फाइन। अब देखिए इंटीजर आई ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप वैसे ही इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे इंटीजर वेरिएबल को करते थे। जैसे इंटीजर एज इज इक्वल टू 5 और 6 आप कर सकते थे, राइट। यहाँ भी आप चाहें इसको इनिशियलाइज करना इज इक्वल टू 6, सेम वे में इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट, है ना। ट्रीट आप उसी तरह करेंगे जैसे प्रिमिटिव की तरह ट्रीट करते थे। थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये तो क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे, है ना। यू विल सी द रीजन लेटर ऑन, ठीक है, क्यों ऐसा अलाउ किया जावा ने और क्या बेनिफिट है इससे। एक सिंपलिसिटी से एक बेनिफिट हो ही गई, ये तो समझ में आ रही होगी, राइट। ठीक है, तो जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उनके करस्पॉन्डिंग क्लासेस भी बनी हुई हैं जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और पर्पस क्या है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप को किसी ऑब्जेक्ट में आप रैप करके एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें तो ये रैपिंग कर सके आप, ये रैपिंग कर सके, जैसे गिफ्ट को रैप करते हैं ना रैपिंग पेपर पर, है ना, वैसे आप रैप कर सके। एंड दैट इज व्हाई these classes are called as wrapper classes। याद रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये रैप कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रिमिटिव कर रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। बात समझ में आ गई गाइस। याद रखने के लिए भी बस आप लॉजिकली आप सोचते जाइए, आपको चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है, वरना कितना याद करोगे, ठीक है। तो अच्छा 10-22 हो गया, फाइन। तो चलो अब ये जो क्लासेस की लिस्ट हम बना रहे थे ना, यानी एंटिटीज की लिस्ट जो बना रहे थे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास रोकते हैं, ठीक है, अटेंडेंस कर लेते हैं। इतना आप रिवाइज करके आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए।